Hello students, welcome to class 12th chemistry video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will discuss unit number 7, that is P block element. So what is the definition of P block element? P block element are placed in the group 13 to 18 in the periodic table and electronic configuration is NS2 NP vary 1 to 6. इट मीन्स हम यहाँ बात करें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में वेरी करेगा, p ऑर्बिटल में, तो p ऑर्बिटल में वेरी कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज p ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, these elements are belong to the p block element. Atomic number 7 for the nitrogen and 15 for the phosphorus, 33 for the arsenic, 51 atomic number for the antimony and 83 atomic number for the bismuth. नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये किस तरह बिहेव करेंगे, नॉन मेटल की तरह, जबकि हम आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करें ये किस तरह बिहेव करेंगे, मेटलॉइड्स, जिनको हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं. और जो बिस्मिथ रहेगा वो किस तरह वेरी करेगा, मेटल की तरह. इट मीन मेटल की तरह इसको बिहेव करना है. इसके बाद हम बात करें कि कोवेलेंट रेडी एंड आयनिक रेडी की. हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे. कौन से ग्रुप की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, 15 ग्रुप की, क्योंकि 13 और 14 ग्रुप हमने 11th क्लास में पढ़ लिए. तो इन द 15 ग्रुप वी मूव टू द अप टू डाउन. एटॉमिक रेडी इंक्रीजेस, ओके, और टेबल में दिख भी रहा है वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, चाहे वो कोवेलेंट रेडी की हम बात करें या आयनिक रेडी. आफ्टर डेट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडी. If atomic ready increases, ionization enthalpy decreases. We see in the periodic table, it means हम इस टेबल में देख भी रहे हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. आफ्टर इट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिमिलर कंसेप्ट, वो भी क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज होगी. ओके, तो दिस इज अबाउट द ग्रुप नंबर 15. Now anomalous property of nitrogen, it means nitrogen belonging to the group 15 but it show the property different from the group 15. कुछ property different दिखाता है. reason क्या है, nitrogen differ from the rest of the member of this group, it means group 15, due to its small size and high electronegativity and high ionization enthalpy. And nitrogen has a unique ability to form p-pi multiple bond with itself and other element. It shows the high electronegativity. Heavier element of this group do not form p-pi bond as their atomic orbital are so large. क्योंकि जैसे हम मूव करेंगे नीचे की ओर, इनमें क्या अवेलेबल हो जाएगी, d ऑर्बिटल की. Now reactivity towards oxygen. All these elements form two types of oxide like E2O3 and E2O5. The oxide in the higher oxidation state of the element is more acidic than that of the lower oxidation state. Their acidic character decrease down the group. अगर हम ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो इन ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन. These elements react to form two series of halide like EX3 and EX5. It means हम इन एलिमेंट की बात करें तो ये 3 वैलेंसी भी शो करेंगे और 5 वैलेंसी भी शो करेंगे, क्योंकि वैलेंसी का क्या होगा, ओवर क्रॉसिंग होगी. तो 3 वैलेंसी कहाँ चली जाएगी, X की ओर, लाइक दिस E वैलेंसी 3 एंड हैलाइड A वैलेंसी 1. ओके, तो कंपाउंड के फॉर्मेशन में वैलेंसी का क्या होगा, ओवर क्रॉसिंग, लाइक दिस EX3. सिमिलर EX5, इट मीन दोनों वैलेंसी शो करेंगे.
nitrogen does not form the pentahalide due to the non availability of d orbital, because these belong to the second period. Second period का means number of shell 2. If number of shell 2, then subshell also 2. It means like 2s and 2p. तो d orbital की यहाँ पे availability नहीं होती है. Now reaction with hydrogen, all the element of group 15 form hydride of the type ES3. Here E means nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. It means like a group 15 element. Some of the property of these hydride are shown in table. After that, the hydride show the regular gradation in their property. Like stability की बात करें, the stability of hydride decrease from NH3 to BiS3, which can be observed from their bond dissociation enthalpy. It means अप टू डाउन जाने पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एसिडिटी of these element decrease in the order NH3 is less than PS3 is less than AsS3 is less than SbS3 and less than equal BiS3. It means यहाँ पे बेसिसिटी जो है ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज हो रही है. Now dinitrogen, how can you prepare it? It means preparation like NH4Cl react with NaNO2. This is the sodium nitrate to form a nitrogen gas. It can also be obtained by the thermal decomposition of ammonium dichromate. यानी अमोनियम डाइक्रोमेट से भी नाइट्रोजन गैस का हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं. Now properties, dinitrogen is a colorless, odorless and tasteless non-toxic gas. It means एयर में वी नो वेरी वेल सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, और उसकी नेचर कैसी होती है, इनर्ट लाइक रहती है. अब लिथियम से रिएक्ट करके वो किसका फॉर्मेशन करेगी, लिथियम नाइट्राइड. वी नो वेरी वेल लिथियम की वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे 1, नॉट अ +1, क्योंकि हम जानते हैं वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं आता. आफ्टर नाइट्राइड show the 3 valency over crossing, we can obtain the Li3N. This is the lithium nitrate. After magnesium also react with nitrogen to form a magnesium nitrate. नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन से और अमोनिया का फॉर्मेशन करेगी, दिस प्रोसेस इज नोन एज हेबर प्रोसेस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर में हमारे प्रिपरेशन भी दिया हुआ है इसका. और आफ्टर दैट नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO. दिस इज अ नाइट्रिक ऑक्साइड. अब यूसेज की हम बात करें, द मेन यूसेज ऑफ डाइनाइट्रोजन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन लाइक कैल्शियम साइनेमाइड. इट ऑल्सो फाइंड यूज वेयर इनर्ट एटमोस्फियर इज रिक्वायर. अगर हमको कहीं पे इनर्ट मीडियम चाहिए तो हम वहां पे नाइट्रोजन गैस को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस है जो कि उसको इनर्ट नेचर को बताता है. Now ammonia preparation on a small scale. Ammonia is obtained from the ammonium salt which decompose when treated with the caustic soda. So what is the formula of caustic soda? NaOH. And calcium hydroxide formula CaOH का whole twice react with ammonium salt, so we can obtain the ammonia. This is the formula of ammonia, NH3. Now very important method, preparation of ammonia. On a large scale, ammonia is manufactured by Haber process. Haber is a scientist name. Nitrogen react with hydrogen to form a ammonia. It means हम यहाँ बात करें आयरन जो रहेगा वो किस तरह बिहेव करेगा, कैटलिस्ट, एंड मॉलिब्डेनम ऐसा प्रमोटर यानी कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा. तो दिस इज अ डायग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. इट मींस यहाँ पे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस को हम यहाँ पे एंटर कराएंगे. कंप्रेसर क्या करेगा, उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेगा. आफ्टर डेट यहाँ पे कैटलिस्ट प्रेजेंट है और इस कैटलिस्ट में क्या क्या और प्रेजेंट है, Al2O3 एंड K2O.
जो क्या करेगा, अमोनिया को का फॉर्मेशन करेगा और किस फॉर्म में करेगा, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, नाइट्रोजन गैस का भी, हाइड्रोजन का एंड अमोनिया का। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को वापस से रिसाइकिल किया जाएगा। रिसाइकिल करने के बाद यहाँ पंप का प्रेजेंस है जो वापस से उसको कहां पे फॉरवर्ड कर देगा, कैटलिस्ट में, और वापस से अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वापस ये मिक्सचर है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो अमोनिया नहीं बना पा रही है, फर्दर इसको हम रिसाइकिल करेंगे। नाउ अमोनिया, this is the structure of ammonia. In this ammonia, nitrogen has the one lone pair and 3 hydrogen bond occur. Ammonia gas is the soluble in water, water में soluble हो जाती है। Its aqueous solution is weakly basic due to the formation of OH minus ion. It means हम देख सकते हैं कि अमोनिया को जब हमने वाटर में ऐड किया है तो यहाँ पे OH माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है। This is the indication of the basic nature. Now the presence of lone pair of electron on the nitrogen atom, it show the basic nature, or this is also known as the Lewis base. It means ये electron pair को donate करता है। तो according to the Lewis concept, ammonia is known as a Lewis base. It react with the Cu2 plus ion to form a complex entity। Ag प्लस आयन से रिएक्ट करके यहाँ पे AgCl का व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा और AgCl फर्दर अमोनिया से रिएक्ट करके यहाँ पे कलरलेस कॉम्प्लेक्स एंटिटी का फॉर्मेशन करेगा। आफ्टर इट यूसेस, अमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट। इट मींस दिस इज द मेन यूसेस ऑफ द अमोनिया। किसमें हम यूज करते हैं इसको, हम फर्टिलाइजर में। Now nitric acid, so what is the formula of nitric acid? HNO3। तो नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सो एसिड, ये ऑक्सो एसिड है जिसकी डेफिनेशन हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। सच एज H2N2O2, दिस इज नॉन एज अ हाइपोनाइट्रस एसिड। आफ्टर दैट नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO2। इट मीन वी नो वेरी वेल, अगर हम NO3 माइनस की बात करें, दिस इज द नाइट्रेट, और अगर मैं इसमें से एक ऑक्सीजन को रिमूव करता हूं तो इट मींस ये क्या बनेगा, NO2 माइनस। तो दिस इज द नाइट्रेट 8 फॉर्म, दिस इज द नाइट्राइड आइड फॉर्म। और जब ये आइड एसिड का फॉर्मेशन करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, अस एसिड। अस एसिड का मतलब क्या कहलाएगा, नाइट्रस एसिड। इट मीन NO2 का जब हमने एसिड बनाया, दिस इज नॉन एज नाइट्रस एसिड। फर्दर मैं एक ऑक्सीजन को और रिमूव कर रहा हूं, एक ऑक्सीजन को रिमूव करूंगा, दिस इज नॉन एज NO माइनस। तो दिस इज नॉन एज हाइपोआइड। हाइपोआइड जब एसिड बनाएगा तो वो कौन सा बनेगा, हाइपोअस एसिड, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। NO को मैं बनाऊंगा एसिड में HNO, तो दिस इज द हाइपोनाइट्रस एसिड। अब स्टेबिलिटी के पर्पज से हमने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीपल कर रखा है। तो इट मींस कंसेप्ट क्या है, 8 में से अगर हम एक ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो आइड का फॉर्मेशन होगा, फर्दर एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो हाइपोआइड का फॉर्मेशन होगा, और इसी हाइपोआइड का जब मैं एसिड बनाऊंगा तो एसिड बनाने पे क्या मिलेगा हमारे को, हाइपोअस एसिड। तो इट मींस हाइपोनाइट्रस एसिड, जिसको स्टेबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीपल किया हुआ है। अब प्रिपरेशन मेथड की हम बात करें तो इन द लेबोरेटरी में हम किस तरह बनाएंगे, NaNO3 रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म HNO3। और लार्ज स्केल की हम बात करें तो लार्ज स्केल में हम यहाँ पे कौन सा मेथड है, ओस्टवाल्ड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि साइंटिफिक नेम आ गया। तो ओस्टवाल्ड मेथड में सबसे पहले अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO, एंड NO फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2। आफ्टर इट NO2 डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म HNO3। यानी 3 स्टेप्स में अमोनिया का 3 स्टेप्स में यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। Now properties, it is a colorless liquid and laboratory grade nitric acid contains 68% of HNO3 by mass. This is the structure of HNO3. Concentrated nitric acid is a strong oxidizing agent. यानी oxidizing agent means substance which oxidize other or get
itself reduce, या तो खुद का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, या सामने वाले का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में कई बार आई हुई है रिएक्शन कि हम कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन करवा रहे हैं किसी मेटल के साथ, तो इट मींस मेटल रिएक्ट विद HNO3 इन कंडीशन कंसंट्रेट। तो जब भी कंसंट्रेट फॉर्म में हम रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी गैस का इवोल्यूशन होगा, NO2। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए जब भी मेटल की हम रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे, कोई सी भी मेटल हो, यानी कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पे, NO2। ये सारे के सारे कंसंट्रेट फॉर्म है, यानी कंसंट्रेट की HNO3 की रिएक्शन हम करवाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होगा। लेकिन अगर हम मेटल ले लेते हैं और मेटल की रिएक्शन में HNO3 से करवा रहा हूं, अब ये HNO3 क्या है, डाइल्यूट है, तो दो कंडीशन है यहां पे कि जब हम डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल हाईली रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। अगर हाई रिएक्टिव होगी, हाई रिएक्टिव, तो इट मींस कौन सी गैस का इवोल्यूशन होगा, N2O का। हाईली रिएक्टिव का मतलब जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है। लाइक हम यहां बात करें जैसे जिंक की हमने डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे तो N2O गैस का इवोल्यूशन होगा। दिस इज अ नाइट्रस ऑक्साइड गैस। इफ मेटल इज लेस रिएक्टिव लाइक कॉपर और हम रिएक्ट करवा रहे हैं डाइल्यूट HNO3 से, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाएंगे तो इट मींस वहां पे कौन सी गैस निकलेगी, NO। दिस इज द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इट मींस सिंपल सा फंडा है कि अगर हम मेटल की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से करवा रहे हैं तो NO2 गैस का इवोल्यूशन होगा। लेकिन अगर डाइल्यूट ले रहे हैं तो दो कंडीशन है, टू कंडीशन आर अकर्स कि मेटल हाईली रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होगी तो N2O गैस का इवोल्यूशन होगा, इट मींस नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर लेस रिएक्टिव है, लाइक हमने यहां पे कॉपर ले लिया, तो इट मींस कौन सी गैस का इवोल्यूशन होगा, NO का। NO मींस नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि आपको यहां दिख भी रहा है। ओके, बाकी रिएक्शन आपको लिख के देखनी है। नाउ ब्राउन रिंग टेस्ट, इट मींस कुछ प्रैक्टिकल की इक्वेशन भी हमारे इस चैप्टर में गिवन है जो कि हमको याद होनी चाहिए। इट मींस द टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द एडिंग डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन टू अ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट। इट मींस नाइट्रेट का ही टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होगा, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो इट मींस हमने सॉल्यूशन कौन सा लिया है, फेरस सल्फेट का, और जो भी नाइट्रेट कंटेनिंग सॉल्ट है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे और H2SO4 जो कंसंट्रेट है अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब डालेंगे, और जैसे डालोगे इट मींस ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द इंडिकेशन द प्रेजेंस ऑफ अ नाइट्रेट आयन। तो दिस टेस्ट बिलोंगिंग टू द प्रैक्टिकल। तो ये आपको रिएक्शंस भी याद होनी चाहिए। आफ्टर डेट यूसेज की बात करें, द मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर द फर्टिलाइजर एंड अदर नाइट्रेट टू यूज इन द एक्सप्लोसिव। तो ओवरऑल हम बात करें 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 ये 4 टॉपिक इन सेशन 2020-21 से डिलीटेड।